नमस्ते। आज हम एक ऐसे टाइप के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि पेरेंट्स डिनाई करेंगे और ऐसे भी पॉइंट्स बताऊंगा जो कि स्टूडेंट्स डिनाई करेंगे। और टॉपिक है व्हाई पेरेंट्स आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड व्हाट वी शुड डू with our children and in a perspective of a parent, and what should we do with a parent in the perspective of a children to build a better communication and a relation between the parent children relation. So without any further ado, let's start the video. But before starting the video, I want to clearly say that if you have any query, if you have any doubt or anything, you can clearly ask me. Link is in the description. You can ask me there and I will make a video on that topic. You can even suggest something, what you like, what you don't like, just like in the comments. So let's start the video. First, our parents are experienced in the form of age. What that means? It means that they have gained a lot of experience in their life because they have saw different types of situations and they gain experience from that. But here we can say that a similar situation can have different outcomes. So if A have a type of experience, B may not have that experience, but B might have some other type of experience which is not quite similar to that of A. But both will tell their children the experience that they had, and they're not wrong because they saw the consequences. But there are also some certain time when you will get only one experience, and that's constant every time, and that will happen also again. If you'll do that, this will happen. At that time the parents are फुली करेक्ट. मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं जिनसे हम सीखते हैं कुछ. बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं जिससे हम कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करते. मतलब कि वो एक्सपीरियंस ना कहने से बेटर होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो सिर्फ हमारा जस्ट टाइम पास हुआ है वैसे, ना कि एक्सपीरियंस हमें बोलते हैं. लेकिन पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होते हैं बिकॉज वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोच नहीं रखते. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स तुम्हारे अच्छे के लिए सोचते हैं. हाँ, दे कैन बी रॉन्ग एट सम टाइम्स, बट दैट डजंट मीन दैट दे आर रॉन्ग एवरी टाइम. और तुम ही हो अकेले जो ठीक हो पूरा, वैसे तो नहीं है ना. सो व्हाई you want to quarrel with your parents on some certain topic? भाई, अगर तुम चाहते हो कि वो समझे तुम्हारी बात, then you also try to understand what they are telling to do. क्योंकि there can be some other reason ना. It's not that they're just telling because they're just telling. I'm not talking about the tradition, I'm not talking about the religion, I'm not talking about all those things. I'm talking about experience. I'm just talking about clear experience, job. I'm talking about all of these type of things. So you just want, for example, let's take another example, that is you want to stand underneath a tree. Let's consider a coconut tree, but your parent will tell that please don't stand, or else the coconut will fall directly on your head and you will get severely injured. But you won't listen because तुम्हारे साथ वो नहीं हुआ. लेकिन तुम्हारे पेरेंट को वो पता है कि वैसा हो सकता है, सो उन्होंने मना किया, एंड दे आर राइट हियर, दे आर क्लियरली राइट. लेकिन तुम नहीं सुनोगे, सो तुम्हारे साथ तो हादसा हो जाएगा. लेकिन इधर जो क्वाइटली बोलते हैं उसे जो करने दो,
कॉन्सिक्वेंस से सब ठीक हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस देख लेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन उस इंसान को कॉन्सिक्वेंसेस तक लेना क्यों है भाई? उसका टाइम बर्बाद क्यों करना है? अगर तुम जानते हो कि ऐसे करने से ऐसा ही होगा, then you should clearly tell that if you are doing this will happen. 2 + 2 = 4. Is that simple? नहीं, लेकिन मुझे किसी की बात नहीं सुननी, क्योंकि मेरा लाइफ है, मैं जो करना है करूँगा। इट्स नॉट ओनली योर लाइफ, समझे? तुम्हें दुख क्यों होता है जब किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ भी? जिसको प्यार करते हो दुख क्यों होता है? कि तुम्हें भी पता है कि ये तुम्हारा 100% तुम्हारा लाइफ नहीं है। You are going to make a lot of choices that may affect your life, but it will just take time for the other people. You know, those are there in your life. So वो एक चीज़ है। और एक चीज़ है, किसी एक्सपीरियंस गेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इधर सोचो कि एक वॉल है, वॉल के अंदर 3 स्विचेस फिट किए हुए हैं। 3 स्विचेस से किसी एक स्विच से एक बल्ब जलता है, ठीक है? लेकिन हमें पता नहीं कि बल्ब कौन सा है, सॉरी बल्ब का जो सर्किट है वो किस स्विच के साथ कनेक्टेड है। सो फर्स्ट एक इंसान जाएगा, 2 इंसान को पकड़ लो। फर्स्ट एक इंसान जाएगा और सारे स्विच ट्राई करके देखेगा कौन से स्विच से बल्ब जल रहा है, और वो नोट कर लेगा कि हाँ सेकेंड स्विच से बल्ब जलता है और बाकी स्विच काम नहीं करते। वो हुआ एक्सपीरियंस विथ अ सिंगल कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि इसमें दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि और कुछ स्विच काम नहीं करेंगे। सो ये एक सिंगल कॉन्सिक्वेंस वाला मतलब कि एग्जाम्पल है। तो वो इंसान आया और बी को बताया कि सेकेंड स्विच काम करता है बल्ब जलने के लिए, ना कि ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड स्विच। सो अगर बी उसके बात माने और जाकर स्विच ऑन करे सेकेंड वाला स्विच, देन इट विल जस्ट वर्क। तो टाइम बहुत ही बच गया। लेकिन वो अगर नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं मानना है, जाकर फर्स्ट एंड थर्ड स्विच पहले ट्राई करेगा, देन टाइम तो बर्बाद ही हुआ ना। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, लेकिन ये एक बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव से। इधर पेरेंट्स करेक्ट होता है, इस टाइप के सिचुएशन में पेरेंट्स करेक्ट होते हैं। अनदर सिचुएशन जो मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस वाला, सेम एग्जांपल पकड़ते हैं। 3 स्विचेस है, एक लाइट बल्ब है, लेकिन इधर एक ट्विस्ट है कि 2 और 3 स्विचेस काम करते हैं। सो फिर से ए गया, फर्स्ट स्विच मारा, बल्ब नहीं चला, सेकेंड स्विच मारा, बल्ब चला, वो नोट करके आ गया और कहा सेकेंड स्विच जलता है। सो बी गया, वो बी लेकिन थर्ड स्विच ऑन किया, और थर्ड स्विच ऑन करने से भी बल्ब जला। इधर है मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन हम इस एग्जांपल से बता नहीं सकते कि बल्ब कौन से टाइप का कॉन्सिक्वेंसेस कैरी करता है, लेकिन इन रियल लाइफ एग्जांपल्स वी कैन ईजिली टेल दैट व्हाट विल हैपन इफ यू विल डू दिस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। फॉर लाइक एग्जांपल, if I propose a person, there are only 2 outcomes. Either that person will say yes or that person will say no. Similar to a job interview. मैं गया जॉब इंटरव्यू के लिए, आइदर मतलब कि बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि आइदर दे विल हायर मी और दे विल रिजेक्ट मी। इधर सिर्फ 2 कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है, दैट्स ऑल। मतलब कि अगर हम डाइस प्रोबेबिलिटी से अगर ट्राई करेंगे, देन इट्स 1/2 50% चांसेस। सो इसमें एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की बात मान लो, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम पेरेंट्स की बात मान लो, तो देयर विल नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर तुम मान भी लो
सो इट्स ओके, क्योंकि तुमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, शायद उन्होंने किया होगा वो एक्सपीरियंस, शायद उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया होगा, इसलिए वो बता रहे हैं। तो टेक देयर वर्ड इन टू कंसिडरेशन टू। और पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। ऑनेस्टी सब जगह चलती है, घर में हो, बाहर हो, जॉब में हो, सब जगह ऑनेस्टी काम आती है। इसलिए पेरेंट्स, प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू योर पेरेंट्स टू लिव अ सिंपल एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दुविधाएं हो, कुछ भी हो, कुछ मुझे सजेस्ट करना है या कुछ भी, देन यू कैन सजेस्ट मी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।